Hello everyone. Today we are going to start our chapter that is equilibrium, and it is one of the chapter of the physical chemistry. So first we will understand the meaning of the word of the chapter that is equilibrium. So what is equilibrium? When suppose uh, we are having a balance here, okay? So it is just put over this base, right? Now similar weight is here and similar is here. Suppose it is 1 kg and it is also 1 kg, okay? Then if both the side is containing 1 kg of weight, then what will happen? There will be no movement at this condition. If we will just took away one weight from here, then the balance will be go this side, and when we will just uh, took away this weight, then it will go to the opposite side, okay? So the condition in which there is no movement in the balance, it is known as the condition of equilibrium. इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं जब नेट फोर्सेस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं, जब कोई फोर्स नहीं काम कर रहा होता. अगर हम केमिकली बात करें, सपोज वी आर हैविंग अ क्लोज्ड वेसल, ओके? हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है. The liquid is filled inside the vessel, and suppose we heat this container, then what will happen? The number of molecules from the liquid will go into the vapor phase. It is quite obvious that they will go into the vapor phase. Then what will happen? When they will hit each other, they will lose the kinetic energy, and maybe possible, or we are not heating the vessel, evaporation can takes place at any temperature, okay? Then what will happen? That they will come down to the liquid phase again. Now there will be a stage when the number of the molecules which are going in a vapor phase, so molecules going in vapor phase will be equal to the number of molecules retaining to liquid phase, okay? So at that condition we say that state of equilibrium is established. जब नंबर दोनों मॉलिक्यूल्स का बराबर हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जा रहे हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कमिंग बैक टू द लिक्विड फेज, वो जब इक्वल हो जाएगा तभी हम उसको कहेंगे दैट दिस इज इन इक्विलिब्रियम, वो है इक्विलिब्रियम में, ठीक है? अब हम वी आर रीडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम. हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल equilibrium. So in chemical equilibrium we will, quite obvious, we will talk about the reactions, chemical reactions, okay? Then what will happen in case of the reactions? When the suppose there is a reaction that is A plus B is giving us C plus D, okay? And it is a reversible reaction, right? So when the forward reaction is equal to the backward reaction, means speed of forward reaction is equal to the speed of the backward. ये इस तरफ जा रही है तो forward reaction होगी when the reactant is converted into the product. और जब ये reaction product से reactant की तरफ हम ले रहे हैं तब ये होगी backward reaction. तो क्या होगा? when the speed of forward reaction is equal to the speed of backward reaction, then we say that state of equilibrium is established. तभी हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो एस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है? तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये डायनामिक होता है. इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके? अब क्या होता है? हमको लग रहा है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, बट जितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होके फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है. सो स्टिल रिएक्शन इज देयर, बट हमको ऑब्जर्व करने में वो नहीं आता.
इसलिए इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. सो वी कॉल इट द डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके. सो इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कैन बी फिजिकल एंड केमिकल. ओके. केमिकल में हमें दो टाइम पढ़ना है, दैट इज मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम. ओके. एंड नेक्स्ट इज आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. और फिजिकल इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल लाइक दैट वाटर is going into a vapor phase. Okay. or vapor are going in a liquid phase. Okay. or solid is going in a vapor phase. Okay. तो यहाँ वाटर से वेपर में जाना, so it is a process of evaporation. Here vapor is going into a liquid, or liquid can again form a vapor, so it is a condensation, and here it is a sublimation. Okay. तो ये जो है ये हमारे फिजिकल प्रोसेस होंगे, और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है ना. वी विल स्टडी दैट. अब हमको ये पता चला दैट एक तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने की कंडीशंस हैं, दैट इज व्हाट इट शुड बी इन अ क्लोज कंटेनर. इक्विलिब्रियम की स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए द रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर. वाई? अगर हम ओपन वेसल में रिएक्शन को कंटिन्यू कराएंगे तो उसमें से लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जिससे हमारा जो लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट हमको वापस नहीं दे पाएगा. तो ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन करना, it is not possible. We can only attain a equilibrium in a closed vessel. And next is equilibrium can be established in a reversible reactions also, not in a irreversible reactions. Okay. तो हम दो reactions देख लेते हैं. एक तो हमारा irreversible reactions. Okay. reaction. और दूसरा है हमारा reversible रिएक्शन. ओके. अब जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वी नो दैट दे कैन नॉट बी फॉर्म अ रिएक्टेंट अगेन. वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे. फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. वापस से ये नहीं बनेगा. ठीक है ना. तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा. दूसरा, इसमें इक्विलिब्रियम तो हमें मिलेगा ही नहीं. नेक्स्ट जो हमें नोट करने वाली बात है कि इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. एक तो पीपीटी रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जैसे हम एग्जांपल ले लें, दैट इज Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaCl. ओके. हम कुछ को बैलेंस कर लें रिएक्शन को. तो next is combustion reaction. Okay. in combustion the reaction can be that हम किसी चीज को बर्न कर लीजिए. MgO हम इसको बर्न कर रहे हैं, Mg प्लस O2. ओके. तो बर्निंग जब हम कर रहे हैं तब भी हमें कंबशन रिएक्शन हो या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, दोनों ही काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा. ठीक है. अब हम जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट इज converting into a product, again product is decomposing and converting into a reactant. इसमें हमें equilibrium मिल जाएगा. इन reactions का example हो सकता है, that is नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग द अमोनिया. ओके. इसको बैलेंस कर लीजिए. राइट. और नेक्स्ट हो सकता है हमारा SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विल गिव अस. राइट. ये एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन का है. और भी हो सकते हैं, दैट इज PCl5 डिकम्पोज होके ये हमें देगा PCl3 प्लस Cl2. ओके. H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमें देगा 2HI.
ठीक है, these all are the example of reversible reaction. These are the stoichiometric coefficient. ये क्या है? stoichiometric coefficient कहा जाता है इनको. इनका भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे, तो इसके लिए आप याद रखिए these are the stoichiometric coefficient, जिससे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को. ठीक है, और ये चेंज हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसलिए. अब देखिए, हम एक ग्राफ को समझते हैं. सपोज वी हैव अ ग्राफ दैट इज, ठीक है, यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर हमने लिया टाइम. ओके, अब क्या होगा, सपोज हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज. क्यों डिक्रीज? क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है ना. इनिशियली द प्रोडक्ट इज जीरो, क्योंकि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जीरो रहेगा ना. देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू फॉर्म, और धीरे धीरे वो बनेगा. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी. उसके बाद में एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. ठीक है ना. और ये जो हमारा पैरेलल लाइन आई है, यही हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है. ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये जो है हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये जो है हमारी वो बैकवर्ड रिएक्शन है. तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, इन द सेम वे, इन अ सेम स्पीड, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. देन आफ्टर वी विल अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हमें इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. ठीक है. अब क्या होता है कि हम एक और ग्राफ देखते हैं, दैट इज, अब ये ग्राफ जो है ये हमारा है कंसंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ. ठीक है, ये हमारा कंपाउंड की कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है. राइट. अब इसमें हम देखते हैं कि सपोज ये हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ से रिएक्टेंट है हमारा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है. सपोज यहाँ हमारा नाइट्रोजन है, डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है. अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, अमोनिया. ठीक है ना. तो क्या होगा, ये भी हमारा यहाँ से अमोनिया जो प्रोडक्ट है ये बनेगा, और आफ्टर सम टाइम इट विल आल्सो कम इनटू द इक्विलिब्रियम. तो इस तरह क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारे ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाएगी, किस पर, इक्विलिब्रियम पर. ओके. तो हम यहाँ नोट कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ईच reactant and product, ठीक है, becomes constant at equilibrium. इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. राइट. अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. हम यहाँ डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है हम वो देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो हमारा ये इक्विलिब्रियम है ये ओपन वेसल में अटेन नहीं हो सकता. इट कैन ओनली अटेन इन अ क्लोज्ड वेसल. सो इट कैन बी अटेन इन अ क्लोज्ड वेसल. ठीक है. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो इक्विलिब्रियम का है कि ये डायनामिक होता है. इट इज डायनामिक, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है इट इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. ओके. और स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. जो हमारा थर्ड है
इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर साइड, वो प्रोडक्ट की तरफ से भी अटेन हो सकता है, वो रिएक्टेंट की तरफ से भी अटेन हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से हम अटेन कर सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर साइड। ओके, फोर्थ, अब क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, वो इस बात पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी कि इक्विलिब्रियम अटेन करने में कोई हमको क्या हो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आते ही दोनों साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, चाहे इनिशियली उनकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो। Okay, so after some time when the state of equilibrium will be attained, the speed of reaction will be equal, the concentration of the reactant and products will be equal, so it will not affect। तो concentration जो है वो initial जो भी हो वो equilibrium को क्या नहीं करेगा, affect नहीं करेगा। तो हम यहाँ नोट करते हैं that initial concentration has no effect on रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। राइट, नेक्स्ट है कि किसी गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, ये हम टेम्परेचर क्या रखेंगे यहाँ पर, गिवन जो भी हम जिस पर इक्विलिब्रियम या जिस पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन अपनी करा रहे हैं, उस गिवन टेम्परेचर पर जो हमारे बाकी के सारे जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एट गिवन टेम्परेचर कौन कौन से फैक्टर हमारे कांस्टेंट होंगे, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, कलर, जो भी कलर इक्विलिब्रियम पर आता है किसी रिएक्शन का, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने पर सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, नाउ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, we know that water catalyst are those compound which increase the rate of reaction। suppose अगर किसी केमिकल रिएक्शन के होने का टाइम 15 मिनट है और हमने उसको कराने के लिए कैटलिस्ट यूज कर लिया, सो दैट टाइम विल बी रिड्यूस सपोज फॉर 5 मिनट। तो वो 10 मिनट उसको रिड्यूस करके केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो कैसे इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है, इट इक्वली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बोथ द साइड। वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है उतना ही वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, इसलिए वो कैटलिस्ट की इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो दोनों तरफ की रिएक्शंस को क्या करता है, बराबर बढ़ाता है। ठीक है ना, सो रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है, रोल ऑफ कैटलिस्ट है दैट इट एनहेंस बोथ। ठीक है, कौन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, टू अचीव इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। ठीक है, आज हमने कुछ बेसिक सी बातें इस चैप्टर में सीखी, कल हम लॉ ऑफ मास एक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।